So our first topic is about first global refugee forum. Again, this organization or this dialogue or this meeting is very much important for this year exam. And why this is very much important for this year exam? Because this global refugee forum is first of such a reform. Okay, इस तरह का पहला एक forum बना है, okay, international forum बना है to deal with the problem of global refugees, and that is why this particular topic, first global refugee forum or global refugee forum, is very much important for this year exam. Okay, so let's see what it is. So the first major meeting on refugees of the 21st century was jointly hosted by the UNHCR. It is basically United Nations High Commissioner for Refugees, this international organization, UNHCR, and UN Refugee Agency, and the government of Switzerland. So these three bodies, UNHCR, UN Refugee Agency, and the government of Switzerland, jointly hosted this particular meeting of this global refugee forum. And this new forum has been created now. And it's an international forum. So this forum, as the name suggests, this is basically deal with refugees. So it aimed to discuss and debate the response of countries to the global refugee situation. It was the first ever meeting of the Global Refugee Forum. This meeting was held in Geneva, Switzerland. So now we'll see what are the key points of this particular forum. According to UNHCR, the first GRF is being held when the number of refugees has risen to over 25 million people worldwide. So they are saying that the number of refugees has been increased tremendously for past few years, and that is why there was a need to protect these refugees. Okay, because in the hosted countries, where these refugees receives, okay, where these refugees reach, these countries are not paying the adequate attention, and in fact that is a burden for that country also. यदि मान लो किसी country में refugees आते हैं, तो वो उस country के लिए भी burden है, और refugees के लिए बेसिकली उनको भी अपने rights नहीं मिल रहे हैं. So it's not a national specific problem, it's an international problem. Okay, so that is why we to deal with the situation of refugee, this kind of forum was needed. Okay, so the GRF meeting, Global Refugee Forum meeting, will be held every 4 years at the ministerial level. तो ये भी याद रखना है कि ये मीटिंग हर 4 साल बाद हुआ करेगी, because this new forum has been created, that is Global Refugee Forum, and that meeting will be at the ministerial level and not at the secretarial level. This is the again point that you need to remember. Now the first GRF, this first meeting of the Global Refugee Forum, focused on 6 areas. And what are those 6 areas? First is the burden and responsibility sharing. As I told you that it's a problem of the host country also, because if like जैसे कि रोहिंग्या का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, okay, because जैसे कि रोहिंग्यास म्यांमार से basically they moved to Bangladesh, okay, obviously because genocide was occurred at the Myanmar, and that is why they moved to the Bangladesh, Cox's Bazar. So, and that is why it was not maybe about 10 lakh, around more than 6 lakh refugees were there in Bangladesh. Okay, so now this was a burden on the Bangladesh also, and that is why the whole international community need to do for this kind of refugees. Okay, if this Bangladesh is showing its courtesy, then it doesn't mean that it should be punished. The Bangladesh should be punished. Obviously, the whole international community should work for to help this Rohingyas, okay, these refugees. So that is why this burden and responsibility sharing, that this burden will be shared by everyone, and not only the burden should be shared by internationally with all countries
In fact, the burden should be shared by the private sector also. Okay, because private sector can do also things like they can provide employment to refugees. Okay, so obviously it's a shared responsibility. So this is our first aim or first focus of this particular meeting. And second is the education. We need to provide the education to everyone, to refugees. Okay, and about the refugees laws, and we need to protect them, these refugees, by providing the education also. We need to provide them jobs and livelihoods. We need to secure their energy and infrastructure, and for example, that we need to provide them electricity connection. We need to provide them good houses, okay, where they can reside, and various other solutions, and to protect and to protect them. Okay, that's a protection capacity. Okay. So these are the basically 6 focus areas of this particular first GRF. So now the next feature is that it intended to present an opportunity for UN member states and other stakeholders to announce action plans and pledges towards meeting objectives such as easing the burden on the host country, which we were talking about. Okay, that we need to reduce the burden of the host country. Host country means the country which is receiving refugees. Enhancing refugees self-reliance, that we need to make them empowered so that they could be self-reliant. They could not be dependent on others. And how we can make them self-reliant? Obviously, by providing them education and livelihood and infrastructure that they are needed. Expanding access to third country solutions. Okay. Third country solutions means that other countries need to work to provide them the facilities, various facilities, and supporting conditions in countries of origin for return in safety and dignity. जैसे कि अब इसका फाइनल सोल्यूशन क्या हुआ था, रोहिंग्या का जो केस था उसका फाइनल सोल्यूशन ये हुआ था कि that these refugees, these Rohingyas will be moved further to their origin country, that is the Myanmar. और फिर म्यांमार में बेसिकली वहां पर हाउसेस बनाना था, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करना था ताकि वहां पर लोग ये दोबारा सब जाएं तो अच्छे से रह सके. For that, many countries helped. Internationally, many countries helped. In fact, not only countries. In fact, these development banks also help, like World Bank, Asian Development. These banks also help in these kind of situations. So obviously, India also helped to create these houses. Okay, India has also given some amount, okay, to Myanmar. So that is why. So our final aim is to provide conditions for these refugees in their origin country so that they could live in safety and dignity. And steps taken in this meeting included of about $3 billion from states, $250 million from the private sector, with promise to provide around 15,000 jobs to refugees and several $1 billion from developmental banks. So these much pledges were there in this particular meeting, that various states will provide this much amount, likewise private sector will provide this much amount along with the 15,000 jobs, and there will be a funding from the developmental banks also, so that we could relocate these refugees. So now this in December 2018, अब एक साल पहले की बात करते हैं इससे हम लोग, जब ये मीटिंग हुई थी, तो 19 में ये मीटिंग हुई थी. So in December 2018, this global compact on refugees was adopted by the United Nations Assembly. It is an effort to improve the international refugee response, so this forum implements the compact. So 2018 में ये एक agreement sign हुआ था United Nations के अंदर. Its name was Global Compact on Refugees. So इसी को implement हमने किया है by creating GRF, Global Refugee Forum. Okay. So ये agreement sign हुआ December 2018 में. So ये भी एग्जाम में एक स्टेटमेंट आ सकती है that this agreement implements the Global Compact on Refugees. That statement will be correct.
In fact, it was proposed by the USA. Okay, it's compact. So analysis देखते हैं हम लोग अभी, and this is more important because exam में tricky questions आ सकते हैं, tricky statements आ सकती हैं about this global refugee forum. So this forum was convened by these countries: Costa Rica, Ethiopia, Germany, Turkey, and Pakistan. अभी मैंने आपको यहाँ पर पाकिस्तान को डबल अंडरलाइन किए, and why I made this double underline is Pakistan because it is a specific feature of this global refugee forum. बहुत कम सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान ने कोई इंटरनेशनल मीटिंग को कन्वीन किया हो. ओके, सो इट्स जस्ट एन आइसोलेटेड एग्जांपल, इसीलिए ये मैं आपको बेसिकली ये टॉपिक और इम्पोर्टेंट हो जाता है इस साल के. एंड इसमें एक ड्रामेटिक टॉक्स भी हुई थी इस जीआरएफ में, यदि आप लोगों को याद हो तो. किसी को याद है क्या हुआ था इस टाइम? एनीबॉडी? The Citizenship Amendment Bill. Right. So this Pakistan Prime Minister Imran Khan, okay, criticized India for use of CAA, okay, and the refugee problem in the Jammu and Kashmir, not refugee, this problem in the Jammu and Kashmir, okay. So this Pakistan PM used this platform, Global Refugee Forum (GRF), to criticize India. So and obviously India replied with its hard hand. That's a different thing, okay. So ये याद रखना आप लोगों को that this forum was convened by the Costa Rica, Ethiopia, Germany, Turkey and Pakistan. ये 5 कंट्रीज ने कन्वीन किया था. So एग्जाम में भी स्टेटमेंट में इंडिया आ जाए यहाँ पे, okay. But remember one thing, that this is convened by these 5 countries. So Pakistan's PM talked about its contribution towards Afghan refugees. तो उन्होंने बात की कि yes, हम लोग अफगान refugees के लिए बहुत सारा contribution करते हैं. He said that Pakistan is hosting thousands of Afghan refugees. In fact, exact number given by this UNHCR, that there are 1.4 million registered Afghans in Pakistan. Okay, that means 14 lakh Afghans in Pakistan. So Pakistan said that we are hosting these much of Afghan refugees in our country for past 40 years. Okay. And after making these stories, then this Pakistan Prime Minister criticized India. Okay. And that's a different thing, that these Afghan refugees, they most of them made Taliban in Pakistan. That's a different thing. Yes, बाकी story हम जानते हैं because we already read about the Taliban. So he used this, the Pakistan Prime Minister used this platform to criticize the role of India in passage of CAA. Our External Affairs Ministry negated these claims and made counter claims in security of minorities in Pakistan. India also gave an example of treatment of Pakistan to East Pakistan in 1971. So India ने basically 1971 का example देते हुए कि ईस्ट पाकिस्तान या जिसको भी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं हम लोग, तो उसके अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान ने किस तरह से ट्रीटमेंट किया था. So India used this particular example that how Pakistan treat with their minority population. Okay, and we have n number of cases that in Pakistan, in fact in Corona case also, that there are claims that Pakistan is not providing adequate amenities to the minority people, specifically Hindu people, okay, in this Corona epidemic. Now for India, that means how this GRF put an impact on India. Okay. So इसको देखना आप लोगों ने, ये कुछ स्टेटमेंट्स आ सकती है कुछ अलग से सिमिलर, बेसिकली रिफ्यूजी इशू के ऊपर ही बेसिकली कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकती हैं इस इशू के साथ. दैट इज दैट India is not a signatory to the 1951 Convention on Refugees or the 1967 Protocol relating to the status of refugees. So these are again international conventions or international protocol, 1951 Convention on Refugees and 1967 Protocol, again about refugees, status of refugees.
So India is not a signatory to this particular convention and protocol. Okay. That means India do not want to bind with these refugee protocols. Why it could be? क्या reason हो सकता है? Yes. Okay. So भी आपको पता लग जाएगा. Because briefly आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ. Then because अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग. Okay. Because India deal with these cases refugee cases by case. जैसे कि जो तिब्बतन refugees है, हम उसको बाहर निकालना नहीं चाहते. Okay, हमारी कंट्री से. उनको हम प्रोटेक्ट भी करते हैं इनफैक्ट. बट देयर आर अदर refugees जैसे कि इस्लामिक जो बेसिकली जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं लाइक it's a intelligence report that these Rohingyas that are present in India and its population is more than 50,000. So the Rohingyas which are present in India, they are indulged in the anti-India activities, okay, anti-national activities, and that is why we deal these refugees case by case. That means if we have signed this 1950, if we would sign this 1951 Convention on 1967 Protocol, then we will be bound to protect these refugees. Okay, but we want to exile these Rohingyas from our country because there is an intelligence report that these Rohingyas are indulged in the anti-national activities, and that is why India is not a signatory to this particular convention or protocol. So India does not have a separate statute for refugees, and until now has been dealing with refugees on a case-by-case basis. According to Home Ministry, there are 54,000 Rohingya refugees living in India, both registered and unregistered. According to the Bureau of Immigration data, India sent back 330 Pakistanis and 1,770 Bangladeshis between 2015 and 18. See, because we are returning these refugees to their origin countries. Okay. So in 2017, in an affidavit filed before the Supreme Court, the government said that the presence of Rohingya in the country has serious national security concerns, as inputs suggest that immigrants has Pak-based terror groups. Okay. So while you're writing in your mains examination, you can put these kind of facts. Okay. Okay, you cannot make your own statement कि ऐसा हो जाना चाहिए. Okay, इंटरनेशनल रिलेशंस में खासकर आप लोग को याद रखना, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमको कुछ फैक्ट्स यूज करने हैं, जैसे कि जो भी कंट्रीज बीच में एग्रीमेंट साइन है उसके बेस के ऊपर बात करनी है, या कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कुछ बोला तो उसको कोट करके बेसिकली बात करनी है. Okay, so likewise, if you want to criticize these Rohingyas or you want to take a stand that some of these, obviously why we are taking the case by case of these refugees, definitely you can put these kind of facts that our government has filed an affidavit in the Supreme Court by saying that Rohingya in the country have serious national security concerns. Okay, and they have linked with the Pak-based terror groups. So we will move to next topic. That is the Human Development Index 2019. So this Human Development Report, actually I have shared their soft copy also with you people. एक वर्ड फाइल मैंने आप लोगों को शेयर की थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उसमें डिटेल में हमने काफी चीजें लिखी थी इसमें. ओके, इसको फटाफट से देख लेते हैं एक दफा. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, एज वी नो, UNDP, United Nations Development Program, and India's rank in this particular Human Development Index is the 129 out of 189. It is up by one rank from last year. That means last year, the India's rank in HDI was 130 out of 189. So there are three indicators, as we know, to measure this HDI, and these three indicators are life expectancy, education,
and GNI, that is no gross national income per capita. Okay, that means per person national income निकाल लेते हैं. At PPP, purchasing power parity. So these are the three indicators. Okay, तो इनमें हम अच्छा कर रहे हैं. That means that our HDI will improve. तो ये तीनों इंडिकेटर याद रखने आप लोगों ने, because इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीलिम में already. Three indicators के ऊपर HDI. So definitely this is important. The report also notes that more Indian men and women were showing biases in gender social norms, indicating a backlash to women's empowerment. So actually, के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इस particular theme के ऊपर आएगा, okay? Because this HDI index 2019 reported that how there is a biasness against the woman in India, okay? And the same UNDP, जो कि HDI को release करता है, same UNDP, United Nations Development Program, also releases one index, that is Gender Inequality Index, GII. So this Gender Inequality Index was came in 2018, okay, and India ranked 122 out of 162 countries in this Gender Inequality Index. In India, we have some facts to prove that there is a gender inequality in our country. In India, और ये सब मेंस के आंसर राइटिंग में भी काम आएंगे, that in India 11.7% of parliament seats are held by women. So एग्जाम में ये एग्जैक्ट मत लिखा करो 11.7%, तो आप ऐसे लिख सकते हो nearly 11% women held the parliament seats, okay, held by women, compared to 17.1% in South Asia. South Asia का एवरेज लें यदि हम लोग, then this percentage is this 17.1%. Yeah, that means India is showing poorly compared to its neighboring countries in South Asia. Okay. And only 39% of adult women have reached at secondary level of education. Total women में से सिर्फ 39% women ही secondary level education को achieve कर पाती है, compared to their male counterpart, because the male folk or man folk can reach to this country level, and that percentage is this 63.5%. Okay. Again, in education front, this was a political front, and this is education front. In education front also, our women were lacking. And apart from that, this report also shown that in poverty alleviation, India managed to lift 27 crore out of poverty from 2005-6 to 2015-16. So this much of population were uplifted from the BPL category. Okay. Nevertheless, it still accounts for 28% of the 1.3 billion multi-dimensional poor in the world. That means total poor of the, if we count total poor of the world, so out of those poor, 28% of poor are in India only. Okay, and that's a serious situation. So these kind of facts you can remember. Okay, so your mains are scientific also. So this is it with this HDI index. So our next topic is eco network. So India has made many efforts eco network. Okay, जैसे कि नाम से पता लग रहा है that it's related to ecology. Eco is related to ecology. So India has made many efforts to promote ecological and environmental research. However, there remains a dearth, there remains a dearth of trained scientists with interdisciplinary skills and collaborative mindset. So there is a need to have interdisciplinary leadership to tackle the problems in medicine, agriculture, ecology, and so what you are saying, although India is doing very good
I mean, made various attempts. Okay, India made various attempts in the research in ecology and environment, but still there is a lack of interdisciplinary and collaborative efforts, and that is why this eco network has been started. Because जो ecology और environment को improve करने के लिए हमें चाहिए कि जो different discipline है, whether it is a agriculture field, whether it is a industrial, whether it is a medicinal, and any other sector, okay, whether it is a technology, new technology like artificial intelligence. So in सबका collaborative effort होना चाहिए to improve our ecology and environment, and that is why we are making some kind of network. That was we are making some kind of network of these sectors, various areas, to improve the research. Okay, to improve the research in the ecology and environment. So we'll see. So Eco Network would provide a national network to catalyze a new generation of Indians through interactive sessions with citizens, industry, academia, and the government. So this Eco Network would be a national network to catalyze a new generation of Indians. तो कुछ ऐसे नए generations के Indians को find करना है, basically हमें leaders find करने हैं by making a network and through interactive sessions with citizens, industry, academic institutions, universities, etc., and the government. So by making a network of these four players, we are finding a ecological solution. So this is it. So now our next topic is tweezer clock. Tweezer clock. So we will see what is this tweezer clock. So this new clock that is named as tweezer clock is designed by researchers at California Institute of Technology and NASA Jet Propulsion Laboratory. Okay, so this California Institute of Technology as well as the NASA's Jet Propulsion Laboratory jointly researched this tweezer clock that will give more accurate and precise time than currently used atomic clocks. So conventionally हम लोग ये clock use कर रहे हैं, atomic clocks को use करते हैं हम लोग. जो time basically जो clocks बताती हैं, conventionally atomic clocks बताती हैं. Okay, and we have founded these tweezer clocks to get more accurate time, more precise time. Okay, इसलिए हम भी basically tweezer clock को not launching this clock. That means we have researched this over this tweezer clocks. थोड़ा सा difference देख लेते हैं. These conventional clocks, which are called atomic clocks, to tell precise time. Okay, लेकिन जो tweezer clocks हैं वो इससे भी ज़्यादा precise time बताएंगे. जो अभी तो clock use कर रहे हैं वो atomic clocks. And each tick of the clock depends on atomic vibrations and their effects on surrounding electromagnetic field. Okay, so इसमें हम electromagnetic field को use करते हैं. Okay, to tell the time. Okay, this atomic vibrations of this atomic clocks tells us about the time. उसी atomic vibration से basically ये जो घड़ी की सुई ये move होती है. Okay, but now this and apart from that, the atom which was used in this atomic clocks was cesium. ये भी याद रखना आप लोगों ने. That atom which was used in the conventional clocks, atom clocks, was cesium. And now these tweezer clocks. Tweezer clocks use optical frequencies of light. उसमें याद रखना आप लोग कि यहाँ पर जो basically use होता है, that is the optical principle. That means we use optical frequencies of light to tell us the precise time. So that is a new development. The use of light, use of frequencies of light to tell us time. It employs technology in which so-called laser tweezers. So इस technology में इस tweezer clocks में जो technology यूज हुई है, that is called laser tweezers. And these tweezers uses 40 atoms, 40 atoms, and those atoms are precisely controlled with laser tweezers. ये कुछ details हैं tweezer clock की, so which can be asked in prelim exam. So we will move to, these are the small topics related to science and technology. So we will move to Biba and Santamas. Santamas. Yeah, Santamas maybe. Okay.
So we'll see what is this Biba and Santa Mas, which was in news. The International Astronomical Union (IAU) in December 2019 named a newly founded star and planet with Indian names. So this Biba is a newly founded star, and this Santa Mas is a newly founded planet. Okay, and these newly founded star and planet named from this Indian names. Okay. So we'll see what is Biba. So Biba is a bright beam of light. This literal meaning of Biba is a bright beam of light. Okay. And I think ये Bengali name है Biba. Okay. And it's the literal meaning of this Biba is a bright beam of light. And Biba उसका टेक्निकल नेम देखो जो स्टार का रखा गया वो ये है HD 86081. This is a scientific name of this star, or this technical, you can say, the name of this star. But the common name of this star is named as Biba. This Biba is a yellow-white dwarf star in the constellation Sextans. So this is a constellation. Constellation का मतलब आप लोगों को पता होगा. Okay, what is the meaning of constellation? Okay. So this is a group of basically stars को बोलते हैं constellation. So this is this star has been founded in this constellation Sextans. It is bigger and more massive than our sun. This Biba. It has been named Biba to honor a pioneering Indian woman, scientist Biba Chaudhary, who discovered subatomic particle Timson. उन्होंने एक टिम्सन नाम का सबएटॉमिक पार्टिकल फाइंड किया था बीबा चौधरी ने, तो उन्हीं के नाम पर फिर इस स्टार का नाम रखा गया. एंड नाउ दिस संत मास और संतामस और व्हाटएवर, इसका जो साइंटिफिक नेम रखा गया है वो ये है HD 86081b, एंड इट इज अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड बीबा. ये बीबा के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. And it has been named Sant Mas because as Sant Mas to reflect the cloudy nature of its atmosphere. Sant Mas basically एटमोसफियर की क्लाउडी नेचर को बोला जाता है, और ये संस्कृत वर्ड है. तो उस क्लाउडी नेचर जब इस एटमोसफियर में होता है तो उसके लिए संत मास ये वर्ड यूज किया जाता है. मे बी मैं कुछ प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ इसको. So this Sant Mas is the Sanskrit term for the clouded. तो ये स्टार भी कुछ इसी तरह से है, सॉरी प्लैनेट भी कुछ इसी तरह से है, ये भी कुछ क्लाउडी दिखता है, and that is why it is called Sant Mas. So now there was one more news about this ALK-BH3. It's a small topic. ALK-BH3 or ALK-B homolog 3. The researchers at the Indian Institute of Technology, Hyderabad, have founded the protein that is named as ALK-BH3 that repairs damaged DNA. Okay, तो ये प्रोटीन फाउंड किया है इंस्टीट्यूट IIT हैदराबाद. IIT हैदराबाद ने एक प्रोटीन फाउंड किया है जो कि डीएनए को रिपेयर कर सकता है. ओके, एंड द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज द ALK-BH3. इस तरह का यदि इस पे क्वेश्चन आएगा तो फिर सिंपल आएगा. ओके, recently ALK-BH3 was in news. So what is this ALK-BH3 stands for? What is the role of this ALK-BH3? इस तरह का क्वेश्चन आएगा सिंपल, इसलिए छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, so our next topic is LB1. So let's see what is LB1. It is a stellar, इसको ध्यान से समझना आप लोगों ने, ये एग्जाम में आ सकता है. LB1, it is a stellar black hole. स्टेलर का मतलब मे भी आप लोगों को पता हो. स्टेलर, किसी को पता है स्टेलर का मतलब क्या होता है? So stellar is related to star. Okay, stellar का मतलब स्टार होता है. So it is a stellar black hole founded by नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ चाइना. चाइना की एक नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने ये स्टेलर ब्लैक होल को बेसिकली फाइंड किया है.
ओके, तो आज हम थोड़ा ब्लैक होल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग भी है ये, ध्यान से समझ लेना। This black hole is founded in Milky Way galaxy, and obviously Milky Way galaxy is our own galaxy. तो जिसमें बेसिकली हमें ये एक ब्लैक होल मिला है, स्टेलर ब्लैक होल, एंड दैट इज फाउंडेड बाय द ऑब्जर्वेटरी, नेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ चाइना. So China, yes, if you have any doubt, directly you can ask. So China used its large sky area multi-project fiber spectroscopic telescope. तो इस टेलीस्कोप का चाइना ने यूज किया है to found this stellar black hole, okay, in our Milky Way galaxy. So the name of telescope which have found it, this stellar black hole is LAMSOT, Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope. So now what is this special about this LB1, which is a stellar black hole? So we'll see. So LB1 is 70 times as massive as the Sun, making it by far the biggest in this class. LB1 is located about 15,000 light years away from Earth. तो उसके बारे में खासियत है LB1 की, that it is a massive black hole and it is 70 times the Sun. जनरली जो बेसिकली जो स्टेलर स्टार्स होते हैं, स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं, वो इतने बड़े होते नहीं है. ओके, स्टेलर ब्लैक होल्स ऐसा माना जाता है कि वो सन से 5 गुना बड़ा हो सकता है, 10 गुना बड़ा हो सकता है, बट नॉट एज बिग एज 70 टाइम्स. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम दिस, दैट इज अ स्पेसिफिक थिंग अबाउट दिस LB1. ओके, ये बात याद रखनी है आपको, ये जो स्टेलर ब्लैक होल होते हैं, अभी हम बात करेंगे इसके डिटेल में, इसके बारे में. वी विल रीड दैट डिफरेंट अबाउट ब्लैक होल्स. ओके, सो जो स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं वो इतने बड़े होते नहीं है, वो 5 या 10 टाइम्स ज्यादा बड़े नहीं होते सन से. बट ये जो LB1 हमें मिला है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में इस बार, वो काफी बड़ा मिला है हमें, 70 टाइम्स बिगर देन सन. ओके, एंड दैट इज व्हाई साइंटिस्ट आर क्यूरियस दैट हाउ इट कुड पॉसिबल, या यदि ऐसा कुछ है देन डेफिनेटली वी नीड टू मोर रिसर्च अबाउट द स्टेलर स्टार्स और स्टेलर ब्लैक होल्स. ओके, so this LB1 is located about 15,000 light years away from Earth. So देखो मैंने अभी यहाँ पर लिखा भी है, यूजुअली द स्टेलर ब्लैक होल्स हैव masses between 5 and 15 times that of sun. तो यूजुअली इतना मास होता है स्टेलर ब्लैक होल्स, सन से 5 से 15 गुना बड़े होते हैं. बट LB1 is a monster because it has equal to 70 suns. 70 times of suns इसका मास है, making it by far the biggest of its class. अभी तक हमें सबसे बड़ा स्टेलर ब्लैक होल मिला है, and that is why it is more famous. So now we'll see black hole. What is black hole? It's interesting. मैं भी काफी लोगों को, आप लोगों को पता भी होगा ब्लैक होल्स के बारे में, बट यस थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं. So it is a region of space-time where gravity is so strong that nothing, no particles or even electromagnetic radiation such as light can escape from it. So black holes की gravitation force बहुत ज्यादा होता है black holes में, because we know that every matter exerts a gravitation force. ये हम बात कर चुके हैं. That every matter, कोई भी matter है वो gravitation force exert करता है. And what kind of gravitation force gravitation force किस तरह का force होता है? It's a attractive force. That means हर मैटर दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगी. ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन मास. जिस मैटर में ज्यादा मास होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगी. जैसे कि अर्थ, मून से ज्यादा मास है अर्थ का, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो भी ज्यादा होगा. और मून बेसिकली अर्थ से छोटी है, उसका मास, इनफैक्ट एक बात याद रखना आप लोग, एक बात और कंसेप्ट याद रखना कि साइज से मैटर नहीं करता. कि मान लो अर्थ बड़ी है मून से, इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स मून से ज्यादा नहीं है, बिकॉज मास ऑफ द अर्थ इज मोर देन. बिकॉज अभी आप देखो कि मान लो मैं कागज का बहुत बड़ा एक वो बना दूं, ओके, बहुत बड़ा मास बना दूं, बट उसका वेट उतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज इट्स मेड ऑफ पेपर. वही मैं एक आयरन की बेसिकली बॉल बनाऊं, सो ऑब्वियसली आयरन की बॉल छोटी सी भी होगी, देन इट कुड बी दिस हैवियर देन दिस पेपर्स दिस बॉल. ओके, सो एक बात ये याद रखनी है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग it does not depend on the size of that object. It depends on the mass of that object. उस body में mass कितना है. So that is why
The body which has more mass, it will exert more gravitation. So मैं यदि ये बोल रहा हूँ कि ब्लैक होल से ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है जिसके कारण वो हर चीज को अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स इसका बात ये तो क्लियर है कि ब्लैक होल्स में मास भी बहुत ज्यादा होता है. यस, एवरीबॉडी इज क्लियर. सो ब्लैक होल्स में मास भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो इतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा है. एंड इन फैक्ट इसमें मास इतना ज्यादा होता है, इतना डेंस मास होता है दैट इट कैन इवन डू नॉट this reflect or transmit the light. It strictly absorb this light. वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ब्लैक होल कोई भी सोचो ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी. हम कैसे देख पाते हैं किसी चीज को? हम देख पाते हैं बिकॉज लाइट उस चीज से टकरा के हमारी आईज में आती है, तभी हम उस चीज को देख पाएंगे. दैट मीन्स वी कैन नेवर सी ब्लैक होल बाय नेकेड आईज. ओके, because black holes do not reflect light, or it can do not let this light to pass through it. Okay, in fact जो भी चीज, यदि आप ट्रक भी ब्लैक होल की तरफ फेंकोगे तो वो उसको भी अब्जॉर्ब कर लेगा, यदि आप किसी प्लेनेट को भी ब्लैक होल के ऊपर फेंक दोगे तो वो भी वो अब्जॉर्ब कर लेगा. दैट्स काइंड ऑफ, एंड इट डिपेंड्स ऑन दिस ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ब्लैक होल्स आल्सो. जितना बड़ा ब्लैक होल होगा उतना ज्यादा वो, और जितना मासिव ब्लैक होल होगा उतना ज्यादा वो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा. सो ब्लैक होल बेसिकली attract each and everything and it do not let pass anything including light. The gravity becomes high because matter gets pressed into tiny space, because बहुत ज्यादा मैटर को प्रेस हो जाता है वो उस पर्टिकुलर स्पेस में, और इतना ज्यादा डेंस हो जाता है कि वहां पर बिल्कुल भी कुछ भी जरा सा भी इसमें पोर या स्पेस नहीं बचता. ओके, सो that's kind of the dense mass it is. Because no light can get out of it, people cannot see black holes, they are invisible. अब ये आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे कुछ लोग कि ब्लैक होल यदि नहीं दिखते हैं तो फिर पता कैसे लगा कि ये ब्लैक होल है? बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी. कई बार वो कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट करते हैं लाइट, जैसे कि मान लो कोई लाइट डिफ्लेक्ट होगी ब्लैक होल के आसपास आते हुए, ओके, और उतने एरिया में लाइट नहीं है, इसका मतलब वहां पर ब्लैक होल होता होगा कि जहाँ पर लाइट पास नहीं हो रही है. अब अभी तो कुछ और प्रोग्रेस हो गई है इनफैक्ट, ओके, एस्ट्रोनॉमी में. अभी तो कुछ ऐसे टेलीस्कोप्स भी बन गए हैं जो कुछ इस तरह से कुछ एनालाइज करते हैं कि ब्लैक होल्स हैं यहाँ पर. देयर आर मेनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक होल जिस तरह में बेसिकली, बट स्टिल यस, दिस इज ए फिनोमेना व्हिच इज येट टू रीड अबाउट इट. ठीक है, इसको और भी रिसर्च भी जरूरी है. So only space telescopes with specific tools can help to find these black holes. Okay. तो सिर्फ कुछ खास तरह के स्पेस टेलीस्कोप्स ही ब्लैक होल्स के बारे में पता लगा सकते हैं. Black holes can be big or small. So black holes obviously vary with their size. जितना ज्यादा मास होगा उस ब्लैक होल में उतना ज्यादा वो बड़ा ब्लैक होल होगा, उतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स का ज्यादा होगा. If the black hole's mass is small, then gravitational force will also small. So smallest black hole can be of equivalent to just an atom. The smallest black hole एक atom के बराबर भी हो सकता है. An atom is the smallest particle you can say. Okay. So black hole can as equivalent to as atom. Even tiny black holes can have mass equal to mass of a large mountain. यदि ब्लैक होल एटम के बराबर भी है तो भी उसका वेट एक माउंटेन के बराबर हो सकता है. ओके, व्हाई? बिकॉज दिस मटेरियल इन दिस पर्टिकुलर ब्लैक होल इज वेरी डेंस. वो इतना कॉम्पैक्ट करके डेंस करके डाला जाता है कि वो माउंटेन के बराबर, एक एटम ब्लैक होल का एक माउंटेन के बराबर हो सकता है. ओके, दैट्स काइंड ऑफ डेंस मटेरियल इट इज. नाउ वी कैन divide black holes into two parts, or you can say we have seen two kind of black holes. One is the stellar black hole, जिसके LB1 भी हम उसी बारे में पढ़ रहे थे, stellar black hole. और एक ब्लैक होल होता है सुपर मासिव ब्लैक होल्स, नाम से बोलते हैं इसको सुपर मासिव ब्लैक होल्स. अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं, ध्यान से समझना आप लोग इसको. वन ब्लैक होल इज स्टेलर ब्लैक होल, अनदर इज सुपर मासिव ब्लैक होल. तो जो स्टेलर ब्लैक होल है नाम से पता लग रहा है, जैसे मैंने बताया कि स्टेलर मींस स्टार. तो जो ब्लैक होल स्टार से बनते हैं वो स्टेलर ब्लैक होल होते हैं. ओके, द ब्लैक होल्स व्हिच मेड अप ऑफ द स्टार. अभी आपको स्टार से ब्लैक होल कैसे बनते हैं उसको थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, स्टार से ब्लैक होल कैसे बनते हैं. तो जो ब्लैक होल स्टार से बनते हैं तो वो स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं. और इट इज ए ब्लैक होल फॉर्म्ड बाय द ग्रेविटेशन कोलैप्स ऑफ ए स्टार.
जब स्टार कोलैप्स हो जाता है, कि स्टार की एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे कि इंसान की लाइफ साइकिल होती है, एक एम्ब्रियो होता है, फिर फीटस बनता है, फिर चाइल्ड बनता है, फिर चाइल्ड से वो बेसिकली मेच्योर होता है, ओके, यंग होता है, एंड देन ही इट कम्स टू ओल्डर स्टेज, ओके, फिर वो पर्सन डाई हो जाता है। इसी तरह से स्टार की भी स्टेजेस होती है, जैसे हमने नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि स्टार कैसे बनता था, स्टार कैसे बनता था, यस, नेबुला हाइपोथेसिस में, एनीबॉडी रिमेंबर नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी, how star formed as per this theory? Anybody? तो उसका नोट्स को रिवाइज करो आप लोग, ज्योग्राफी तुम काफी अच्छे से पढ़ चुके थे सब चीजें हम लोग। सो इसमें बेसिकली ऐसा माना जाता था कि स्टार्स जो है बेसिकली एक जैसे एक डस्ट पार्टिकल्स और बेसिकली गैसेस का एक क्लाउड होता था, जिसको नेबुला बोला जाता था, ओके। फिर वो क्लाउड रिवॉल्व होता रहता था, रिवॉल्व होते होते वो फिर वो क्लाउड कोर के ऊपर इकट्ठा होने लग गया, ओके। तो जो मासिव पार्टिकल्स बेसिकली हैं वो सारे सारे कोर में आने लग गए, ओके। सो बेसिकली फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस होना शुरू होगी, तो फिर ये जो बेसिकली जो सारे सारे डस्ट मटेरियल से बने, नेबुला से बने हैं, ओके। तो पहले गैसेस और डस्ट पार्टिकल का बेसिकली नेबुला होता था, उससे बेसिकली बनते थे स्टार्स। सो ये फिर इसके बाद इसकी अगेन स्टेजेस होती है, फिर इसमें फ्यूजन रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द लाइट, ओके। एंड उसके बाद फिर रेड जायंट बनता है, ओके, रेड कलर का बेसिकली बन जाता है। उसके बाद फिर इसमें एक्सप्लोजन होता है, एंड देन फिर इसके बाद ब्लैक होल्स बन जाते हैं, इसको हम पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में। सो स्टार की भी स्टेजेस होती हैं, तो जो स्टार डाई हो जाता है एक तरह से, ये ब्लैक होल जो होता है, ये स्टेज स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं, ये डाइड स्टार्स होते हैं, मतलब जो स्टार मर गया, जो स्टार खत्म हो गया, एंड इट द एंड स्टेज ऑफ द स्टार, ओके। तो ब्लैक होल इज नथिंग बट द स्टेलर ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल इज नथिंग बट इज द एंड स्टेज ऑफ द स्टार, तो स्टार से बनते हैं बेसिकली, ओके। So these are born when extremely massive stars collapse. तो black holes तभी बनते हैं जब बहुत बड़े स्टार कोलैप्स होते हैं, जब छोटे स्टार कोलैप्स होते हैं देन ब्लैक होल्स नहीं बनते, जब बहुत बड़े सारे स्टार्स कोलैप्स होते हैं, टूटते हैं, तभी ब्लैक होल्स बनते हैं। So इसका एग्जांपल है अभी जैसे हमने देखा कि सुप LB1 इज ए स्टेलर ब्लैक होल, जो कि 70 टाइम्स बड़ा है, जनरली 5 to 50 टाइम्स ही बड़े होते हैं ब्लैक होल्स, ओके। स्टेलर ब्लैक होल्स 5 to 50 टाइम्स ही बड़े होते हैं सन से, but yes, this LB1 is 70 times bigger than our sun. Now what is supermassive black hole? These are giant black holes which are million times as massive as the sun. They are thought to be found at the center of almost all large galaxies. तो हमने स्टेलर ब्लैक होल देखा था, हमने 5 to 15 टाइम्स बड़े होते हैं और ये 70 टाइम्स बड़ा है, पर ये जो सुपरमासिव ब्लैक होल्स होते हैं, they are million times as massive as the sun. So you can think of that how massive these black holes are. So they are million times massive as that of sun. और ये कहाँ पर मिलते हैं? They are found to be at the center of almost all large galaxies. जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी है, तो मिल्की वे के गैलेक्सी के बीच में एक सुपरमासिव ब्लैक होल होगा, ओके, और उसके आसपास फिर स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं, ओके, सोलर सिस्टम्स होते हैं। बट जनरली ईच एंड एवरी गैलेक्सी हैज ए सुपरमासिव ब्लैक होल एट इट्स सेंटर। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल होता है, एंड दैट इज ए सुपरमासिव ब्लैक होल। और ये कैसे बनता है, क्या इससे कैसे बना है, ये कैसे नहीं, ये हमें अभी आइडिया नहीं है, ओके। मे बी ये बिग बैंग जब बेसिकली एक्सप्लोजन हुआ था, मे बी उससे ये फिनोमेना हुआ, ओके। एंड मे बी इसीलिए ये सारे एक गैलेक्सी इसीलिए इकट्ठी रहती है, बिकॉज जो सुपरमासिव ब्लैक होल है उसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है, ओके। तो मे बी उसके कारण ये सारे जो बेसिकली सोलर सिस्टम्स हैं, मे बी एक गैलेक्सी के रूप में रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस सुपरमासिव ब्लैक होल, ओके। इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें कम नॉलेज है, ओके, कि इसके बारे में ये कैसे बना और व्हाटएवर। बस ये स्टेलर ब्लैक होल को साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है थ्रू देयर टेलीस्कोप्स एंड थ्रू अदर टूल्स आल्सो, थ्रू सैटेलाइट्स आल्सो। तो ये हम एनालिसिस काफी कर चुके हैं स्टेलर ब्लैक होल का, बट यस वी हैव लेस रिसर्च राइट नाउ अबाउट दिस सुपरमासिव ब्लैक होल। तो इसका एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे मिल्की वे के अंदर, हमारी जो गैलेक्सी के अंदर जो सुपरमासिव ब्लैक होल है उसका नाम ये है सैजिटेरियस ए, इट्स आल्सो कॉल्ड SGR-A, ओके।
एंड इट्स फाउंड एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे। तो मिल्की वे जो हमारी खुद की गैलेक्सी है उसके सेंटर पे ये वाला सुपरमासिव ब्लैक होल है, दैट इज सैजिटेरियस ए और GRA। नाउ वी सी द एजेस ऑफ स्टार, स्टेजेस ऑफ स्टार और स्टेजेस ऑफ स्टार। ओके, कि स्टार कौन कौन से स्टेज से पास होते हैं। तो पहले एक नेबुला होता था, स्टेलर नेबुला बनता है। ओके, नेबुला से फिर यदि ये नेबुला बेसिकली बड़ा सारा है तो फिर से मासिव स्टार बन जाएगा, और नेबुला छोटा है तो फिर से एवरेज स्टार बन जाएगा। तो जो हमारा खुद का सन है वो एक एवरेज स्टार है, दैट मींस छोटा स्टार है। ओके, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने। नेबुला कैन रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द एवरेज स्टार एज वेल एज मासिव स्टार। तो दिस एवरेज स्टार फॉर्म्स रेड जायंट। इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है, ये स्टार तब है जब ये देखो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर, ये स्टार इस तरह से मासिव स्टार यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, जो अभी हमारी प्रेजेंट कंडीशन हमारे सन की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी कि इसकी लाइट प्रोड्यूस करना बंद कर देगा कुछ टाइम बाद। जो व्हाइट लाइट आती है, ये बंद हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, रेड जायंट बन जाएगा। ये रेड कलर का दिखने लग जाएगा ये स्टार। और ये मासिव स्टार है वो भी एक रेड सुपर जायंट। ये भी रेड जायंट ही है, बट इट्स अ सुपर जायंट। व्हाई? बिकॉज़ से मासिव स्टार ये बहुत बड़ा होगा। ये रेड सुपर जायंट काफी बड़ा है रेड जायंट्स। तो स्टार की नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, रेड जायंट बनने के बाद फिर क्या होगा, इसमें प्लेनेटरी नेबुला बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा, सुपरनोवा। एक तरह से देखो ये पहले कंसोलिडेट हो गया, एक स्टार बना। ये जो नेबुला था अलग अलग पार्टिकल्स से बिखरे हुए थे, उससे फिर एक स्टार बना, फिर रेड जायंट बना। अब वापिस से बिखरेगा, ये रेड जायंट बेसिकली वापिस से टूटेगा। इस तरह से ये रेड सुपर जायंट वापिस से टूटेगा। तो रेड जायंट टूटने के बाद क्या बनाता है, प्लेनेटरी नेबुला। ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं, स्टार की स्टेजेस क्या है। सो रेड जायंट टूटने के बाद क्या बनाता है, प्लेनेटरी नेबुला। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेनेटरी सिर्फ नाम बोला जाता है, प्लेनेटरी इसका मतलब ये नहीं कि प्लेनेट बन गया यहाँ पर कोई। सो सिर्फ नाम है इसका प्लेनेटरी नेबुला, बिकॉज ये प्लेनेट की तरह दिखता था, बट डजंट मीन कि ये प्लेनेटरी कुछ बन गया। ओके, देयर इज नो प्लेनेट फॉर्मेशन, डोंट वरी, कुछ भी सॉलिड मटेरियल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक तरह से थोड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, उससे प्लेनेटरी नेबुला बना, और यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। व्हाई? बिकॉज इट्स ए सुपर जायंट। तो ये सुपरनोवा होता है, इट्स ए वेरी बिग एक्सप्लोजन compared to this planetary nebula. And planetary nebula resulted into the formation of white dwarf. White dwarf means ये बहुत छोटा सा होता है। आप ऐसा मान लो कि कुछ 10, 12, 15 एलिफेंट्स को मिला तो उतना बड़ा ये व्हाइट ड्वार्फ, उतना मास का बेसिकली ये व्हाइट ड्वार्फ, इसका मास काफी कम होता है। ओके, तो एक छोटा सा बेसिकली एक ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है। ओके, बहुत छोटा सा स्टार दिखता है इतना सा। ओके, और इसके अंदर कुछ दम नहीं होता, ना तो ये कुछ लाइट प्रोड्यूस कर पाता है और ना ही इसका कुछ ग्रेविटेशन फोर्स होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये कुछ एलिफेंट्स के वजन के बराबर इसका वजन होता है व्हाइट ड्वार्फ स्टार, इसलिए ना तो ये लाइट प्रोड्यूस करने काम आता है और ना ही इसमें ग्रेविटेशन फोर्स होता है। और ये व्हाइट ड्वार्फ जो लेकिन चमकता है, थोड़ा सा छोटा सा व्हाइट सा बन जाता है, पर ये व्हाइट ड्वार्फ ही कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाता है, और उसके बाद ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, छोटा सा पार्टिकल बन जाता है ब्लैक कलर। ओके, तो व्हाइट ड्वार्फ फर्दर इवॉल्व इनटू ब्लैक ड्वार्फ। तो दिस इज द स्टेज। ये इस तरह से सन ये जो यहाँ से स्टार्ट होती है प्रोसेस, यहाँ पर खत्म हो जाता है ब्लैक ड्वार्फ। लेकिन इस केस में एवरेज स्टार के केस में, जब स्टार का केस साइज रिलेटिवली काफी कम है, जैसे कि हमारा सन इज इन दिस कैटेगरी एवरेज स्टार। लेकिन मान लो स्टार बहुत बड़ा है, मासिव स्टार है, तो रेड सुपर जायंट बनाएगा, उसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा, उस बहुत बड़े एक्सप्लोजन को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। अब सुपरनोवा हुआ, उसमें भी दो कंडीशन है। यदि मान लो ये जो सुपरनोवा हुआ था और ये मासिव स्टार भी दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है, एक स्मॉल मासिव, एक लार्ज मासिव। मासिव स्टार वास्तव में बहुत बड़ा है, तब तो बनेंगे ब्लैक होल। और यदि मासिव स्टार जो तो इतना बड़ा नहीं था कि वो ब्लैक होल बना पाए, देन इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार। ओके, अब इनका ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, बिकॉज इनका मास भी ज्यादा होता है। ओके, so this is the process of basically this formation of the black holes. Okay, उसके बारे में थोड़ा सा राइटअप भी लिखा हुआ है हम लोग हैं। ये जो सारी प्रोसेस मैंने आपको बोली है, इसका राइटअप भी मैंने आपको दिया है आपको, तो इसको फटाफट से देख लेते हैं हम लोग।
So here average star are of small size, जिसकी एवरेज की बात की जैसे हमारा सन है. Smaller stars last for several billion years. ये कंसेप्ट भी समझ लो आप लोग. अब हमने दो तरह के स्टार्स पढ़े थे, एक एवरेज स्टार और एक मासिव स्टार. तो जो एवरेज स्टार होते हैं एक स्मॉल साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं. तो जो स्मॉल साइज के स्टार होते हैं उनकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बिलियन ऑफ ईयर्स, जैसे कि हमारा सन है. ओके, बिलियन ईयर्स ओल्ड है. तो जो एवरेज स्टार होते हैं, जो स्मॉल स्टार होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल बहुत बड़ी होती है. लेकिन जो मासिव स्टार होते हैं, लाइफ साइकिल बहुत कम होती है. वो कुछ ही सालों में बेसिकली खत्म हो जाते हैं, बने और खत्म हो गए. ओके, लेकिन जो एवरेज स्टार है इनकी लाइफ साइकिल बहुत बड़ी होती है, बिकॉज इसमें जो एनर्जी लॉस होता है वो बहुत स्लोली स्लोली होता है. यहाँ पर लेकिन एनर्जी लॉस होगा जो वो एकदम सडनली हो जाएगा. तो यहाँ पर ये सब चीज लिखी हुई है. So smaller stars last for several billion years because they burn their fuel much more slowly. Small star like the sun will undergo a relatively peaceful and beautiful death. तो जो small star होते हैं वो बड़े आराम से उनकी डेथ होती है. जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा. ओके, तो इससे ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, छोटा सा पार्टिकल बन जाएगा और पीसफुली डेथ होती है. जो एक्सप्लोजन हुआ था वहां पर प्लैनेटरी जो नेबुला बना था, दैट वाज आल्सो नॉट दैट मच बिग. ओके, तो इजीली ये स्मॉल स्टार खत्म हो जाता है, जैसे कि सन है हमारा, and passes through planetary nebula phase to become a white dwarf, which eventually cools down over time and stops glowing to become so-called black dwarf. Very less mass, no strong gravitational force. So I think there was a connection problem. Now you are getting my voice. तो मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मे बी मैंने कुछ आप लोगों ने मिस कर दिया. So small star like the sun will undergo a relatively peaceful and beautiful death and passes through planetary nebula phase to become a white dwarf. ये small star होता है, इसकी जो डेथ होती है वो बहुत पीसफुल होती है, एक planetary nebula बनता है एंड उससे फिर white dwarf बनता है and this white dwarf further cools down to form black dwarf. And this black dwarf has a very less mass. इसका मास काफी कम होता है ब्लैक ड्वार्फ का, जिसमें वो 40 के बराबर होता है. And it has no strong gravitational force. इसका gravitational force भी ब्लैक होल की तरह नहीं होता. ये ब्लैक ड्वार्फ बेसिकली बहुत स्मॉल सा पार्टिकल होता है. ओके, now these massive stars on the other hand experience a most energetic and violent end. जो लेकिन इनका जो एंड होता है मासिव स्टार्स का बहुत वायलेंट होता है. They caused a supernova, a violent explosion. ये बहुत violent explosion होता है supernova. Once the dust clears out, only thing remains is neutron star that often rapidly spins and known as pulsars. ये जो न्यूट्रॉन स्टार है ये बेसिकली बहुत रैपिडली स्पिन करता है, घूमता है बहुत रैपिडली, और इस मोशन को, इस पूरी प्रोसेस को बेसिकली पल्सर बोला जाता है. इट्स मास कुड बी इक्विवेलेंट टू सन. ओके, जो न्यूट्रॉन स्टार होता है इसका मास सन के इक्विवेलेंट भी हो सकता है और मोर ऑफ इट, इससे बड़ा भी हो सकता है. बट इट्स डायमीटर इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 20 किलोमीटर. अब ये खास चीज है. ओके, बिकॉज एक चीज और आप ध्यान से देखो, मैं इसको बोल रहा हूँ न्यूट्रॉन स्टार. मे भी किसी ने पढ़ा भी ज्योग्राफी में, इसको न्यूट्रॉन स्टार क्यों बोला जाता है? यस, एनीबॉडी हु रेड ज्योग्राफी? व्हाई दिस न्यूट्रॉन स्टार इज कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार? किसी को पता है? ओके, so atom is made up of the proton, electron and neutron. Okay, तो जो न्यूट्रॉन स्टार को न्यूट्रॉन इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन पार्टिकल्स का मिलकर बना होता है. इसका जो कोर होता है न्यूट्रॉन स्टार का, इट इज मेड अप ऑफ द न्यूट्रॉन पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार. ओके, बिकॉज ये पूरा का पूरा मटेरियल टूट के एक तरह से कोर पे गिर जाता है. ओके, उसके बाद ये न्यूट्रली चार्ज हो जाता है और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार. So its mass could be equivalent to sun. देखो इसका मास सन के बराबर है, लेकिन देखो सन की डायमीटर काफी ज्यादा है. इनफैक्ट अर्थ की डायमीटर 6400 किलोमीटर है, तो सन की डायमीटर तो डेफिनेटली हमने पढ़ी थी काफी ज्यादा है. बट जो इसकी डायमीटर है, न्यूट्रॉन स्टार की डायमीटर होगी, दैट वुड बी अराउंड द ऑर्डर ऑफ 20 किलोमीटर. और वही बात है कि ये जो मास है, इट्स
इट्स बहुत कम डायमीटर में बहुत डेंस मास है. ओके, so that is the basically meaning of this neutron star. यदि इसकी डायमीटर 20 किलोमीटर के अराउंड है, दैट मींस ये न्यूट्रॉन स्टार बन गया. ओके, ऑब्वियसली ग्रेविटेशन फोर्स इसका होगा, बट इतना ज्यादा नहीं होगा. इट विल बी इक्विवेलेंट टू द सन. सन का ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वली या उससे थोड़ा सा ज्यादा, उसके बराबर इसका ग्रेविटेशन फोर्स होगा. बट इफ स्टार इज लार्ज इनफ, स्पेशली लार्ज, it can even form a black hole. And so these kind of black holes are called stellar black holes. So black hole neutron star में दोनों में क्या डिफरेंस है? That neutron star की diameter काफी कम होती है, लेकिन black hole की diameter काफी ज्यादा होती है. Okay, and gravitational force भी obviously black hole का ज्यादा होता है. So this is it with this topic. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा. If you have any doubt, you can definitely ask me right now. Okay, so I hope that it is everybody clear to you people. Okay. So next topic is about Clear Space 1 mission. So the European Space Agency is planning up a mission in association with a consortium led by Clear Space, a Swiss startup. This will be the first space mission to remove debris from orbit, that means Earth's orbit, and planned for launch in 2025. So basically Clear Space mission वही है जो हमने पहले भी एक बार देखा था कि जो स्पेस में जो डेब्रिस होता है उसको बेसिकली कैसे खत्म करें. ओके, बिकॉज इट इज अ जनरल प्रॉब्लम, बिकॉज जितना स्पेस में डेब्रिस इकट्ठा होता रहेगा उतने ज्यादा हमारे जो स्पेस एसेट्स हैं, स्पेस एसेट्स का मतलब जो हमारी सैटेलाइट्स हैं या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस हैं. ओके, तो वो जो स्पेस में हमारे जो सारे एसेट्स हैं उनको बेसिकली ये खत्म कर सकता है. तो ये स्पेस डेब्रिस है, ये काफी हाई स्पीड से ट्रेवल करता है स्पेस में. तो ये स्पेस डेब्रिस बेसिकली उनको टकरा के तो उनको डैमेज कर सकता है हमारे एसेट्स को, एंड इट कुड बी अ प्रॉब्लम. और जो फर्दर हमने जो सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारी जनरेशन, न्यू जनरेशन, कमिंग जनरेशंस जो सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगी, तो उनको भी ये प्रॉब्लम मिलेगी, बिकॉज हम उसके लिए कुछ स्पेस में जगह छोड़ेंगे नहीं सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए. ओके, पूरे स्पेस को हम डेब्रिस से भर देंगे, कचरे से भर देंगे. So everybody is thinking of, जो basically related है space science से related जो bodies हैं, everybody is thinking about how to get rid of this space debris. Okay, and that is why this European Space Agency is planning up a mission in an association with a consortium led by Clear Space, a Swiss startup. एक startup company है Clear Space नाम से, स्विट्जरलैंड की. तो उसके साथ मिलके ये यूरोपियन स्पेस जो एजेंसी है ये एक मिशन लॉन्च करना चाह रही है. the mission name is Clear Space 1. So this will be the first space mission to remove debris from orbit, Earth's orbit, and planned for launch in 2025. इस तरह का हमने पहले भी चीज पढ़ी थी, आप लोगों को याद है कब स्पेस डेब्रिस की बात की थी हम लोगों ने? Yes, anybody? Project Netra. Yes, project. I think आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मेरे को. Can you repeat it? Project Netra. Project Netra, right? So Netra के प्रोजेक्ट में हमने पढ़ा था बारे में कि नेत्रा एनालाइज करेगा बेसिकली कितना स्पेस डेब्रिस है स्पेस में, राइट? और आई थिंक रिमूव डेब्रिस भी हम लोगों ने किया था. यस, रिमूव डेब्रिस किया था हम लोगों ने क्या इस करंट के क्लास में? रिमूव डेब्रिस. ओके, सो मे भी मेरे पास याद आ रहा है कि शायद मे भी मैंने डिस्कस किया हो. सो यस, प्रोजेक्ट नेत्रा डेफिनेटली हम लोगों ने किया था. सो ये प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग. सो दिस मिशन इज प्लान टू लॉन्च इन 2025 फर्स्ट ऑफ ऑल. सो 4 armed robot developed by Clear Space, the Chaser, will collect space debris by wrapping itself around the targeted space trash and will fall back toward the Earth in a controlled manner. Okay, so एक तरह से ये रोबोट है जो चेजर एक नाम का एक रोबोट है. इसकी 4 आर्म है. तो ये अपनी आर्म को बेसिकली आर्म से अपनी बेसिकली स्पेस डेब्रिस इकट्ठा करने की कोशिश करेगा ये रोबोट. ओके,
एंड उसके बाद ये पूरा कचरा इकट्ठा करने के बाद ये अर्थ के ऊपर गिर जाएगा इन ए कंट्रोल्ड मैनर ऑब्वियसली कि कहां पर हम इसको गिराना चाह रहे हैं. ओके, एंड इट विल वर्क इन द लो अर्थ ऑर्बिट बिलो 500 किलोमीटर के अंदर जितना जो डेब्रिस है उसको इकट्ठा करने के लिए बेसिकली ये मिशन लॉन्च करने वाले हैं. एंड दिस मिशन विल लॉन्च इन द ईयर ऑफ 2025. Now there is one more term about this space debris only. This is Kessler syndrome. इस नाम से भी टर्म एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम में भी. Kessler syndrome. So इसके बारे में समझते हैं. So Kessler syndrome was proposed in 1978 by NASA scientist Donald J. Kessler. तो डोनाल्ड जे कैस्लर ने बेसिकली एक कैस्लर सिंड्रोम नाम की टर्म दी थी. ऑब्वियसली इनके नाम पे पढ़ा, देखो डोनाल्ड जे कैस्लर, कैस्लर सिंड्रोम के नाम से पढ़ा है. So it states that collisions among the space debris create more debris which again collide among themselves, thus leading to cascading effect. तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि जैसे कि एक कोई टुकड़ा हो गया, मान लो एक डेब्रिस बन गया, तो वो कचरा दूसरे कचरे से टकराएगा और दूसरे डेब्रिस से टकराएगा और फिर वापस उसको भी तोड़ देगा. तो ये जो डेब्रिस है ये मल्टीप्लाई होता रहता है, ये बार बार टूटता रहता है. डेब्रिस एक टुकड़ा होगा दूसरे टुकड़े को तोड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई होता रहता है. तो ये कास्केडिंग इफेक्ट होता है. जैसे मैं टकराया दूसरे टुकड़े से तो वो एक तरह से मोमेंटम मिला, उनके जो मल्टीपल टुकड़े हो गए उससे फिर उनको मोमेंटम मिला, फिर वो फर्दर किसी को ब्रेक करेंगे. ओके, सो दिस इज ए कास्केडिंग इफेक्ट एंड दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड कैस्लर सिंड्रोम. ओके, सो ये जो स्पेस डेब्रिस से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इट्स नॉट कि ये कांस्टेंट है, इट्स मल्टीप्लाइंग. अदर सच प्रपोज्ड मिशन लाइक दिस कि हम लॉन्च करने का सोच रहे हैं. One is eDeorbit. This mission again would be launched by European Space Agency, and ELSA-D that would be launched by the Japan-based project uses a magnetic capture mechanism. तो जापान ये ELSA-D ये जो मैग्नेटिक जो बेसिकली जिनमें फेरस होता है, तो ये मैग्नेट होगा इस रोबोट में. तो जितना भी जो आयरन से रिलेटेड या फेरस से रिलेटेड जो मटेरियल होगा उसको ये बेसिकली अपने साथ स्टिक कर लेगा. ओके, जो जापान का रोबोट है. दिस इज प्रपोज्ड प्रोजेक्ट अगेन. So there is one international committee also which deals with this space debris. And what is the name of that committee? United Nations Committee on the Peaceful Uses of the Outer Space. COPUOS. So this is a committee. It's an international body with Italy, France, China, Canada, Germany, India, Japan, USA, Russia, Ukraine, UK and ESA as members. Obviously ऐसा नहीं कि सिर्फ यही members हैं, but these are important members because ये जो country है जो maximum satellite launch करती है. Okay, obviously you cannot expect कि African countries बहुत ज़्यादा launch करती हैं. Okay, so it deliberates and decides on debris mitigation strategy. So this body decides about how to mitigate this space debris. So इस कमेटी का भी नाम याद रखना आप लोगों ने. So this committee was established in 1959 formally after resolution was adopted in United Nations. It has 92 members as of 2019. This committee has basically 92 members as of 2019. So next topic is about RESET 2BR1. Its full form is the Radar Imaging Satellite. In December 2019, ISRO launched RESET 2BR1 satellite using PSLV. And in fact, PSLV C48. Okay. It was PSLV's 50th mission. Apart from RESET, this PSLV mission also launched 9 commercial satellites, 6 from the USA and 1 each from Israel, Italy and Japan. जैसे कि हम लोग ये बात कर चुके हैं स्पेस प्रोग्राम के बारे में, इंडिया के बारे में बात कर चुके हैं, that this PSLV rocket, this PSLV launch vehicle is used to launch remote sensing satellites and in fact the low weight satellites in the specifically the LEO orbit या MEO orbit के आसपास देखो लॉन्च करनी है हमें सैटेलाइट्स को हम PSLV का यूज करते हैं.
That's a different thing that we use PSLV for Mangalayaan also. That's a different thing. That's a different case. Okay. Generally, the PSLV का use होता है वो remote sensing या imaging satellites या इस तरह के satellites को LEO या MEO orbit में launch करने वाले satellites को basically हम इसके PSLV का use करते हैं. And this is the most successful launch vehicle for India. Okay. And it's also called the space war horse. PSLV is also called the space war horse. Okay. तो इतना हमारा फेमस है PSLV, इतना ज्यादा बेसिकली ये एक्यूरेट है और इतना ज्यादा सक्सेसफुल है that no parallel launch vehicle is there. Okay. And in fact it is cheaper also. हम बेसिकली कम पैसे में इसको लॉन्च कर देते हैं. ओके. सो एक तरह से ये बेसिकली एक हमारे लिए मोनेटाइज भी कर सकता है PSLV. हमें फायदा भी मिलता है इससे बिकॉज हम दूसरी सैटेलाइट्स को बेसिकली दूसरी कंट्रीज की सैटेलाइट्स को भी PSLV से लॉन्च करते हैं. ओके. सो दिस PSLV कैन बी यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पसेस आल्सो अपार्ट फ्रॉम लॉन्चिंग आवर ओन सैटेलाइट्स. तो इसी तरह से हमने रिसैट को लॉन्च करना था PSLV से, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो फॉरेन कंट्रीज की सैटेलाइट्स थी उनको भी लॉन्च कर दिए. तो एक तरह से ये बस की तरह है जो पैसेंजर्स को बिठाती है. ओके. और उसको उनको डेस्टिनेशन के पे छोड़ के आ जाती है. ओके. जैसे कि मान लो हमने रिसैट को लॉन्च करना था तो यूएसए ने बोला कि हमारे भी 6 सैटेलाइट्स इनको लॉन्च करना है और इन 3 कंट्रीज ने भी बोला कि हमारी एक सैटेलाइट इनको भी लॉन्च करना है. तो हम लोगों ने 9 पैसेंजर्स फॉरेन पैसेंजर्स बिठा लिए सैटेलाइट में. ओके. हमारी रिसैट खुद का डोमेस्टिक पैसेंजर था सबसे बड़ा. ये बड़ा प्लेयर होता है. इसके अलावा जो छोटी सैटेलाइट्स होती हैं ये जो लॉन्च करते हैं ना, मेरे साथ में 2 बड़ी सैटेलाइट लॉन्च नहीं होती हमेशा. ये रिसैट एक बड़ी सैटेलाइट थी, इसके साथ में 9 छोटी-छोटी सैटेलाइट्स बेसिकली बिठा ली इसमें. ओके. कई बार कुछ यूनिवर्सिटी वाले भी बोल देते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की एक छोटी सैटेलाइट हमारे डेवलपमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट है, हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है, तो इसको भी आप छोड़ आओ. ओके. उसको भी हम छोड़ देते हैं. तो इस तरह की चीजें भी होती हैं. तो दिस 9 आर द पैसेंजर्स. इनको बिठा लिया और उनको भी अपने ऑर्बिट में छोड़ के आ गए हैं PSLV. और इनफैक्ट कभी ऐसा भी होता है कि मोर देन 30 सैटेलाइट्स वर लॉन्च्ड बाय द सिंगल PSLV. ओके. आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मिशन, पर ऐसा भी हुआ था. ओके. सो आवर PSLV इज वेरी फेमस इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो ऑब्वियसली वी चार्ज मनी टू दिस कंट्रीज. हम इनसे पैसा लेते हैं लॉन्च करने के लिए. ओके. So these international customer satellites were launched under a commercial arrangement with New Space India Limited, the commercial arm of ISRO. तो ये जो फॉरेन सैटेलाइट्स को बेसिकली लॉन्च करना है हम लोगों ने, तो इसके लिए एक कमर्शियल एग्रीमेंट साइन होता है. तो हमारी एक ISRO की एक कमर्शियल आर्म है दैट इज नेम्ड एज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. तो दिस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड मेड एन एग्रीमेंट विद these countries to launch their satellites. Okay. इसको कैसे कमर्शियल पर्पस यूज करना है, इसके लिए कमर्शियल एक काम है ISRO की. Okay. Now features of this reset. इस NSIL के बारे में बात करेंगे हम लोग. जो ये जो नई कमर्शियल आर्म बनी है, ये लास्ट ईयर ही बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए डेफिनेटली. इसलिए हम इसको लब से बात करने वाले हैं थोड़ी देर. फिलहाल रिसेट के बारे में पढ़ते हैं. This satellite is second satellite in recent 2B series. इससे पहले हम लोगों ने रिसेट 2B लॉन्च किया था. अभी रिसेट 2B 1 लॉन्च किया है, पहले हमने रिसेट 2B लॉन्च किया था मार्च 2019 और अभी रिसेट 2B 1 लॉन्च किया हम लोगों ने दिसंबर 2019 में. तो लास्ट एक ही साल में हम लोगों ने 2 रिसेट लॉन्च किए. एंड इट इज ए 24 आवर ऑल वेदर radar imaging, जिसे नाम सजेस्ट कर रहा है. RISAT stands for radar imaging satellite. इसकी फुल फॉर्म क्या है? radar imaging satellite. So it is a 24 hour all weather radar imaging earth observation satellite. So एक तरह से ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, एक तरह से ये फोटो खींचती है अर्थ की स्पेस से. ओके. लेकिन इसमें खास क्या है? रिजोल्यूशन. So this satellite has a resolution of 0.35 मीटर. That means 35 सेंटीमीटर. और 35 सेंटीमीटर का रेजोल्यूशन होने का मतलब क्या है? That if two objects which are 35 सेंटीमीटर apart can be distinctly identified. तो यदि दो ऑब्जेक्ट हैं अर्थ के ऊपर और दोनों 35 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है या उससे ज्यादा डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ये जो सैटेलाइट है दोनों ऑब्जेक्ट को पहचान कर सकते हैं. ये दो ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है और यदि इनकी डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर से कम है तो फिर ऐसा डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हम लोग यहाँ दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए भी वहां पर फिर वो एक ऑब्जेक्ट लगेगा हमें स्पेस से देखने में. ओके. So this is the meaning of this resolution of 0.35 meter. So this satellite has been placed in LEO orbit
at the height of 576 kilometer altitude. So LEO orbit जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं 2000 किलोमीटर से जो कम की सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हम लोग एल्टीट्यूड पे, उनको LEO orbit बोलते हैं. So this particular satellite has been launched at average height of 576 kilometers. It has a mission life of 5 years. It is equipped with X-band synthetic aperture radar. Okay. Now let's see what is the significance of this RESAT 2D1. So this satellite helps in military and surveillance purposes for national security. तो एक तो ये है कि ये बिकॉज इसका रिजोल्यूशन काफी अच्छा है, इसलिए मिलिट्री और सर्विलेंस पर्पस के लिए यूज की जा सकती है. ये इसका प्राइम मोटिव है. जैसे कि फर्ज करो कि जो भी ये जो इंट्रूजन्स होते हैं बॉर्डर्स पे, जैसे पाकिस्तान से कुछ बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप्स आ रहे हैं, मान लो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ये सैटेलाइट्स का यूज किया जा सकता है देखने के लिए कौन कौन से बॉर्डर से यहाँ पर इंट्रूजन हो रहे हैं. जैसे कि फर्ज करो कि यूएसए ने अलकायदा का लीडर को बेसिकली ओसामा बिन लादेन को बेसिकली मारा था पाकिस्तान में जाके. सो आपको क्या लगता है कि कैसे, ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी आ चुकी है, उसमें भी आप लोगों ने कुछ लोगों ने देखी हो, तो उन लोगों ने बेसिकली सैटेलाइट्स का यूज किया था. सो दे यूज दिस काइंड ऑफ सैटेलाइट्स, इनका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है. ओके, तो उन लोगों ने घर को भी लोकेट किया था, काफी महीनों से इन्होंने प्रैक्टिस करके आइडेंटिफाई करके सैटेलाइट्स का यूज करके कि इस घर में रह रहे होंगे, इस तरह से यहाँ पर ये पर्सन निकलते हैं, इतने पर्सन निकलते हैं. ओके, so they have used this space technology only to find out this Osama bin Laden. Okay, apart from the ground intelligence, तो उन लोगों ने पूरा ये एनालाइज करके कौन, इनफैक्ट लाइव दिखा था उनको इन सैटेलाइट्स के मदद से कि कौन पर्सन आ रहा है, कौन जा रहा है इस घर से. ओके, ऑब्वियसली कि चेहरे में दिखते हैं, बट यस काफी अच्छा रिजोल्यूशन होता है, ऑब्जेक्ट दिखते हैं उनको. ओके, सो इस तरह से हम लोग भी ये यूज कर सकते हैं. मे भी कल को लश्कर तैयबा के कुछ लीडर को पकड़ के लाना होगा, मान लो ऑफिस सही है, तो मे भी हम इस तरह सैटेलाइट को यूज कर लेंगे. ओके, so it can be used in agriculture. Apart from this military and surveillance purposes, it can be used in agriculture, forestry and disaster management support. Okay, so in these areas also we can use this technology. Okay, for disaster management and this flood and drought, we can use this satellite. So it will further strengthen India's position as a global destination for launching small satellite using PSLV. So ना केवल इस, जैसे हमने पढ़ा था अभी, ना केवल हमने हमारी सैटेलाइट खुद की रिसेट लॉन्च की है, बट हमने 9 कमर्शियल सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं. ओके, फॉरेन कंट्रीज. इसीलिए अगेन PSLV प्रूव हुआ है एज ए ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट्स. तो अभी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे यदि सस्ता यदि कोई पड़ता है स्पेस में लॉन्च करना, बेसिकली PSLV के थ्रू पड़ता है. ओके, इसलिए सारी कंट्रीज के ये फर्स्ट चॉइस है आज को. तो भी बात करते हैं हम लोग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर एग्जाम बिकॉज इट्स ए न्यूली फॉर्म्ड इंस्टीट्यूशन, इट्स ए न्यूली फॉर्म्ड कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाई इट कैन बी आस्क्ड फॉर दिस ईयर एग्जाम. सो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इनफैक्ट रीसेट से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है. ओके, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. सो NSIL was incorporated in March 2019. And NSIL is a wholly owned Government of India company under the administrative control of Department of Space. Okay, तो Department of Space के अंदर ये बॉडी रहेगी NSIL. Okay, and it's a wholly 100% owned by the Government of India, and it is a commercial arm of ISRO. तो इसरो का काम तो क्या है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका काम तो सिर्फ रिसर्च करना है, ओके, और लॉन्च करना है सैटेलाइट्स. बट उसको कैसे, हमने इसरो ने इतनी अभी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है स्पेस से रिलेटेड, तो क्यों ना उसको कमर्शियलाइज किया जाए, क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली सेल आउट किया जाए, क्यों ना, जैसे हमारे PSLV को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दिस और ऐसा भी अभी क्या करना चाहता है कि पहले हमारी स्पेस में मोनोपोली होती थी, डिफेंस सेक्टर में, दोनों सेक्टर में मोनोपोली होती थी हमारी गवर्नमेंट की, और अभी हम क्या करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं. तो ये जो NSIL है, ये क्या करेगा, अभी ये PSLV क्रिएट करेगा एट दी मास लेवल. अभी हमारा क्या होता है कि जैसे कि कैपेसिटी है इसरो की, लिमिटेड कैपेसिटी है, एक लिमिटेड फंड होती है इसरो के पास, और लिमिटेड कैपेसिटी होती है सैटेलाइट लॉन्च करने की, PSLV को बनाना और फिर उसको लॉन्च करना. पर मान लो फर्ज करो कि हमारे पास रेडीमेड PSLV पड़े हुए हैं, 8-10 PSLV पड़े हुए हैं ऑफिस,
जो भी कंट्री मान लो आज ऑर्डर देती है कि यूएसएल की हमारी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, इसको कर दो, तो हमारे पास पीएसएलवी रेडी पड़ा हुआ है, तुरंत लॉन्च कर दो। ऐसा अभी नहीं है, अभी केस में अभी तो ये होता है कि जो हमारा खुद का मिशन यदि लॉन्च हो रहा है, रीसेट लॉन्च हो रहा है, तो उसके साथ ही के डाल दी सैटेलाइट। और उसके बाद क्या होगा यदि हम लोग ने इसको पूरी तरह से कमर्शियलाइज कर दिया, और इनफैक्ट एनएसआईएल इसलिए बनाई गई है कि हम खुद से पीएसएलवी क्रिएट करेंगे, इस एनएसआईएल क्रिएट करवाएगी पीएसएलवी प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प के साथ। मान लो फर्ज करो कि टाटा कंपनी के साथ इन्होंने बैट कर लिया कि टाटा और ये मिलके बेसिकली इसरो उनको टेक्नोलॉजी शेयर करेगी टाटा को कि कैसे बनाना है पीएसएलवी, ओके। और फिर टाटा टेक्नोलॉजी लेने के बाद फिर ये पीएसएलवी व्हीकल बनाएंगे, ओके। या कोई भी कंपनी हो सकती है, मे बी दिस अंबानीज हो सकते हैं, ओके, हु गेट दिस फेवर, ओके, कोई भी हो सकते हैं। सो मानो फिर वो पीएसएलवी बनाएंगे, बल्क में बनाएंगे, और फिर हम लोग बेसिकली इसको फिर कोई भी कंट्री हमारी इजीली कभी भी इसमें लॉन्च कर पाएगी, ओके, सैटेलाइट्स। So this is the basically use of this NSIL. It provides space-related products and services emanating from Indian space program. The main objective of NSIL is to scale up industry participation in Indian space program. So that will be the main objective of NSIL. And the headquarter of NSIL is in Bengaluru. Maybe आप लोगों को पता हो कि इससे पहले एक और कमर्शियल आर्म थी इसरो की, अभी भी है डेफिनेटली, एंट्रिक्स। तो अभी हमारे पास दो कमर्शियल आर्म है इसरो की, वन इज एंट्रिक्स एंड अदर इज एनएसआईएल। एंड दिस एंट्रिक्स वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992 and this NSIL was incorporated in March 2019, okay. This Entrix was incorporated in 1992 and NSIL was incorporated in March 2019. तो ये रिसेंटली एक कमर्शियल आर्म बनाई गई है। तो दोनों में फर्क क्या है, क्यों दो एक अलग से बॉडी बनाई गई जबकि एंट्रिक्स हमारे पास थी, ओके। एंड एंट्रिक्स वाज मेड इन मिनी रत्ना कंपनी, इसको मिनी रत्ना कंपनी बना दिया गया था एंट्रिक्स को। और इसका काम सिर्फ इतना होता था कि टू हैव फॉरेन एग्रीमेंट्स टू लॉन्च फॉरेन सैटेलाइट्स यूजिंग इसरो रॉकेट्स। एंट्रिक्स का काम इतना होता था कि जैसे कि अभी जो रिसेंट लॉन्च की है, हालांकि इसका एग्रीमेंट एनएसआईएल के साथ साइन हुआ था, तो जो एंट्रिक्स का बेसिकली सिर्फ इतना काम रहता था कि जो भी इसरो की रॉकेट्स में डालनी है सैटेलाइट्स, उसके लिए फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट करना, ओके। लेकिन जो एनएसआईएल है, एनएसआईएल का काम इससे भी ज्यादा है। सो एनएसआईएल बेसिकली ज्वाइंट वेंचर्स भी बना पाएगा इंडस्ट्रीज के साथ, इसको कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाए लॉन्च व्हीकल्स को, ओके। So this NSIL can make agreements with domestic or foreign players, and apart from that, they specifically focus on to monetize ISRO's research. For example, to produce PSLV with private players. तो इसरो की जो एसेट्स हैं, स्पेस एसेट्स, उसको मोनेटाइज कैसे किया जाए, उस रिसर्च को मोनेटाइज कैसे किया जाए, ये काम कौन करेगा? NSIL, okay. So now there are two commercial arms, one is Entrix and other is NSIL. और मे भी आप लोगों को पता भी है कि एक इशू भी आया था एंट्रिक्स का, ओके। सो देयर वाज वन इशू दैट दिस एंट्रिक्स वाज इन्वॉल्वड इन द करप्ट प्रैक्टिसेस। पता है किसी को वो इशू क्या था? इज एनीबॉडी? काफी फेमस हुआ था ये, काफी स्कैम आए थे 2013 में किसी कारण। एंट्रिक्स देवास केस कुछ इस टाइप से था, देवास कंपनी का, राइट। देवास बेसिकली ये यूरोपियन की किसी कंट्री की एक कंपनी थी दावोस, ओके। उसमें फिर एक डील का बेसिकली आया था क्योंकि एंट्रिक्स के साथ डील हुई थी एंड इट कुछ करप्ट बेसिकली डील हुई थी, ओके। एंड इसके कारण ये जो 2G स्कैम आया था और ये एंट्रिक्स बेसिकली स्कैम आया था, ये सारे उसी टाइम आए थे। एंड व्हेन दिस कांग्रेस गवर्नमेंट lost it in the elections, okay, 2013 के आसपास ये सारे स्कैम्स आए थे, उस टाइम ये काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन अभी ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। So right now for this year exam NSIL will be important, okay. So more than this reset, so we will start art and culture class after 5 or 6 minutes.